Hello students, today we will studying SS of standard 8th, chapter number 3rd, nationalism. Okay, last lecture में हमने study किया था. Then we will study Lucknow Pact. Lucknow Pact in 1916. Lucknow Pact referred to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow. Okay, तो ये लखनऊ में held हुआ. Then made both the parties reach the agreement to pressure the British government to adopt a more liberal approach toward India and give Indian more authority to run their countries, and Lucknow Pact also established cordial relation between the two prominent group of the Indian National Congress, the moderates and the extremists. Okay, तो ये जो था वो इम्पोर्टेंट है कि नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट लीडर्स जो सारे थे वो एक साथ हो गए. किसके लिए? इन ब्रिटिशर्स को अप्रोच करने के लिए और उनको प्रेशराइज करने के लिए. ओके, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिम. सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January in Cuttack, Odisha. Okay. His mother's name was Prabhavati and father's name was Janki Nath Bose. Okay. He was very intelligent since his childhood. He stood fourth in the ICS exam in the year 1920. है ना, उन्होंने उस समय की एग्ज़ाम ICS एग्ज़ाम जो ईयर 1920 में उन्होंने लंदन में कंडक्ट हुई थी वो ज्वाइन की. देन ही ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस आफ्टर रनिंग टू इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो इंडियन कांग्रेस में ज्वाइन हुए. He was arrested for 11 times under the political offense. He became the president of the हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938. हरिपुरा का जो सेशन था उसमें वो प्रेसिडेंट थे. ओके, जो कि 1938 में हेल्ड हुआ था. एंड सेकेंड टाइम इन द त्रिपुरा सेशन हेल्ड इन 1939 सी डिफेंस ऑफ ओपिनियन फोर्स हिम रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, उनको नहीं जमा इसलिए उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया. Then in May 1939, Subhash Chandra Bose formed a new political party. Name was Forward Bloc. Okay, उसका नाम क्या था? Forward Bloc. When the Second World War broken out in Europe, Forward Bloc launched an anti-war propaganda. As a result, Subhash Chandra Bose and his followers were arrested and imprisoned by the government. While in jail, Subhash Chandra Bose went to the hunger strike and deteriorated his health, and the government was forced to set him free. However, he was kept under house arrest. Okay, उन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में ब्रोकन आउट हुआ तब उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की, एंटी वॉर प्रोपोगेंडा किया और हंगर स्ट्राइक की, जिसके कारण उनको रिलीज़ किया और होम अरेस्ट किया गया. ओके, On 17 January 1941, Subhash Chandra Bose escaped from the house arrest. He disguised as Pathan and reached Berlin via Peshawar. कहाँ से गए वो? बर्लिन गए via पेशावर, काबुल एंड मास्को. A speech on Berlin radio which shocked the Britishers. From there he went to Japan via Sumatra. Okay, कहाँ से पहुँचे वो जापान? सुमात्रा से. सुमात्रा के थ्रू वो जापान पहुँचे. अंडरस्टैंड थिंग्स टू नो. जर्मनी एंड जापान वर फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड. सुभाष चंद्र बोस टुक एडवांटेज to this and started communicating with the German leader. Hitler and Japan's Prime Minister Tojo, being an Asian country, Japan was in better position to help. So Subhash Chandra Bose decided to start the fight
for freedom with the help of Japan. ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने जापान की आर्मी में क्यों ज्वाइन किया. ओके, देन एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन नेशनल आर्मी, उसका नेम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी. ओके, अब वो कैसे आज़ाद हिंद फौज बनी और कैसे उसमें सुभाष चंद्र बोस आए. एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म आज़ाद हिंद फौज और नेशनल आर्मी with the help of Indian soldier who had surrendered to Japan as war prisoner due to difference of opinion between Japanese government and Rasbhari Bose. मोहन सिंह हैड टू रिजाइन. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो रसभरी बोस थे उनका डिस्प्यूट हुआ, जिसके कारण उन्होंने रिजाइन किया और द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज बिकम ब्लड हो गया उसका. देन क्या हुआ कि जनरल कांस्टेंट रसभरी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज. आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने रसभरी बोस ने अपॉइंट किया. ओके, एंड 4 जुलाई 1943 में ही वॉज गिवन द ऑनररी टाइटल ऑफ नेताजी. नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू द फौज एंड द नेशन. क्या दिया उन्होंने? स्लोगन दिए, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली एंड जय हिंद. Okay. He taught the countries of Southeast Asia and appealed the Indian living there to sacrifice everything for the freedom of the country. He said to the people, "You give me blood, I give you freedom." ये उनका स्लोगन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उन्होंने कहा पीपल्स से कि you give me blood and I give you freedom. ओके, ये उनका स्लोगन था, वर्ड फेमस, और जो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत वर्क हुआ. ये इनकी आज़ाद हिंद फौज का है, और यहाँ पर ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रोविजंस गवर्नमेंट. सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद एक्टिव गवर्नमेंट टू फ्री इंडिया in Singapore in October 1943. He took charge as the chief of the army. This government declared a war against England and America. Role of Azad Hind Fauj. Azad Hind Fauj was recognized by Subhash Chandra Bose after they became the chief of Arji Hukumat-e-Azad Hind. Proper training was given to the soldier and the Azad Hind Fauj was divided into various battalions. अब यहाँ पर थिंग्स टू नो में देखने वाली बात है. आज़ाद हिंद फौज वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन बटालियन बाय सुभाष चंद्र बोस एंड वॉज नेम्ड एज गांधी, सुभाष, नेहरू एंड आज़ाद. उनके क्या नाम थे? 4, गांधी, सुभाष, नेहरू एंड आज़ाद. अ स्पेशल एंड अ सेपरेट बटालियन नेम्ड झांसी की रानी. झांसी की रानी भी उन्होंने एक बटालियन का नेम रखा, जिसको कि गर्ल्स कैप्टन थी, उनका नाम था लक्ष्मी सहगल. आज़ाद हिंद फौज secured victory at various fronts in the eastern border of India like Arakan and Imphal. Later on, the force was forced to retreat due to the shortage of the food supply and heavy rain. America dropped the nuclear bomb on the Japan and Japan surrendered. The dynamics of the war changed and the future of Azad Hind Fauj became hazy. 4,000 soldiers died and 25,000 soldiers were arrested. है ना? तो ये वॉर कैसे फिनिश हुआ? जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम डाला, तब ये सरेंडर हुआ. ओके, नेताजी had taken a vow that he will not enter in the subjugated India. Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. As per the report published by the Japanese government, his plane that took off from Taipei airport of Formosa
on 18th August 1945 crashed and Netaji being serious burned succumbed to death. ओके, उनकी डेथ के बारे में आज भी कुछ सस्पेंस है। उनको बर्न किया गया और उसके बाद बंद हो गए वो एयर क्रैश में, बट उनकी डेड बॉडी आज तक मिली नहीं। इसके लिए वो एक सस्पेंस है कि उनकी डेथ उस समय हुई थी या बाद में और कभी। ओके, तो देन ये लेसन आज हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इस लेसन में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह करना होगा। वर्कबुक तो मैं आपको प्रॉपरली भेज रही हूँ, उसमें से आपको कंप्लीट करना है, और शॉर्ट नोट कौन से करना है वो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको भेजूंगी। ओके, और नेक्स्ट डे इस लेसन का टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहना। ओके, बाय।